nucleus, and the electron cloud which you see around it is actually the energy levels in which the electrons will be found. Those dots are not the electrons beta, so don't think कि वो electrons है, वो जो dots दिख रहे हैं वो electrons नहीं है बेटा, those that is just symbolizing the energy levels around the nucleus. So from the center of the nucleus to the outermost shell or to the outermost area till which the density of the atom can be accommodated. ये density वगैरह का definition तुम लोगों को नहीं है, I'm just telling you, ठीक है? So that is your atomic radius. Important part in this definition is center of the nucleus. Okay. Now, actual atomic radius को measure करना obviously is very difficult. We are talking about an atom who is having the measuring unit in angstrom units, in atomic mass unit, AMU. So it's very, very, very small, and it's definitely very difficult to calculate the atomic radius. Look at the size of the atom. It's of the order of 1.2 angstrom unit. बहुत छोटा बेटा, very small. तो इतना छोटा एटम का साइज क्या बोलते हैं समझना, रेडियस मेजर करना is a big challenge. Okay, so what is, you know, the angstrom unit in meters, the conversion, you know, right? 1 angstrom unit is 10 to the power minus 10 meters. So 10 to the power minus 10 meters is 0.000, मतलब 9 times 0 and then 1. तो बहुत small है, right? Angstrom unit सुना बेटा पहले, ये angstrom unit wavelength में सुना रहेगा आप लोग ने? Yes. Yes. Okay. So इसका size इतना छोटा होता है, इतना छोटा, like it's very, very small. ठीक है. Now, sir, 10 raised to minus 10 कैसा है? Or minus 10. The conversion of angstrom unit to meters is 1 angstrom unit is equals to 10 to the power minus 10 meters. उसका conversion factor है. जैसे हम लोग ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10 to the power minus 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे. Okay. Okay बच्चा? Yes, yes. ये देखो. When I talk about electron cloud, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब मेरा न्यूक्लियस के आसपास का एरिया जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं. अब उसका जो बाउंड्री है, इट इज नॉट डेफिनेट, इट इज नॉट परफेक्टली डिफाइंड बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स बीइंग इन एनर्जी लेवल्स दे कीप ऑन मूविंग. नाउ ये हम देखते हैं कि ये हम ड्रॉ करते हैं कि सर्कल्स बना दिया, ओवल्स बना दिया अराउंड द न्यूक्लियस, बट एक्चुअली में देयर इज नो सर्कल एंड ओवल, राइट? इट इज जस्ट रोटेटिंग, रिवॉल्विंग अराउंड दैट पाथ. तो वो पाथ कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, ऐसा. So it is never a defined boundary of electrons around the nucleus. The complications in measuring the atomic radius, but we estimate the radius. So this can be done when atoms are present in the combined state. You know what is combined state? Hydrogen plus hydrogen, H2. H2 is the combined state of hydrogen. तो सिंगल हाइड्रोजन का क्या बोलते हैं रेडियस फाउंड करना इज डिफिकल्ट, बट यू कैन एस्टिमेट इट व्हेन यू हैव द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन. H2 जब आपके पास होगा, देन यू कैन एस्टिमेट इट इजीली. अभी देखो, एटॉमिक रेडियस के 3 टाइप्स होते हैं: कोवैलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड वैन डर वाल्स radius, metallic radius and van der Waals radius. This is a bit extra which I am teaching you beta, but don't worry, and all this can be used in your entrance exams. जब भी आप CET JEE की प्रिपरेशन करोगे तब ये छोटी चीजें काम आएंगी आपको. So don't think कि भाई ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये पोर्शन में नहीं है, तो ये क्यों पढ़ा रहा है. बेटा पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती, ठीक है. एंड बाय द वे आप लोग का 25% पोर्शन कम कर दिया है, which is very sad. So बेटर है जितना पढ़ सकते उतना अच्छे से पढ़ लो. Okay. आवड़ेंगे. So covalent is used in reference to non-metals. Covalent radius बोले तो क्या? Covalent radius बोले तो एक एटम है, दूसरा एटम है, उन्होंने कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है, ठीक है. So these are just
geometrical values. Obviously, radius is half of the diameter. So, homo diatomic molecule. Now, I use a very nice word. Homo diatomic molecule. Homo means similar. Di means two. ये आपको जो सामने दिख रहा है बेटा, ये दो एटम्स हैं, दो एटम ऑफ द सेम एलिमेंट. इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, उसको अगर मैं हाफ करूं, that is going to be the covalent radius of that particular atom. See, if you check, यहाँ से क्या बोलते हैं, एक एंड से दूसरे एंड तक और एक एंड से राइट तक एंड लेफ्ट तक दो न्यूक्लियर दिख रहे हैं आपको. तो वो सेंटर से न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज गोइंग टू बी द डायमीटर एक्चुअली, बिकॉज r प्लस r 2r है. तो इसका जब मैं आधा लूंगा, दैट इज गोइंग टू बी द रेडियस ऑफ वन एटम. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. दैट्स व्हाई इट इज शोन विजिबली. क्योंकि आप देखोगे वीडियो, आप देखोगे इमेजेस, तो आपको जल्दी समझ में आता है. Okay. Now let us take an example of chlorine atom. So when I talk about chlorine atoms, the covalent diameter or the distance between them is 108 picometers. The distance between the nuclei of the two joining chlorine atoms is 198 picometers. Okay. What is going to be the radius of chlorine atom approximately? 99 picometers. 19. Excellent. 198 को क्या किया तुमने? Divide by 2. Very good, very good. तुम लोग समझ गए मतलब. तो इसको क्या होगा? We will divide it by 2. Pico का ये क्या होता है बेटा? Picometers. Pico stands for 10 raised to minus 9. 12 meters. बेटा 9 तो नैनो है ना? 10 raised to minus 12 meters. 10 to the power minus 12 meters is picometers. तो ये भी बहुत छोटा यूनिट है. ठीक है, इसका रेडियस क्या हो जाएगा? 99 पिकोमीटर्स. नाउ अभी ये जो मेरे को दिख रहे हैं एटम्स, ये मेटल के एटम्स हैं. अभी तो हमने नॉन मेटल देखा, इसलिए मैंने कोवेलेंट रेडियस बोला. अब मैं मेटालिक रेडियस की बात कर रहा हूँ. मेटल में क्या होता है? मेटल्स आर नॉट फॉर्मिंग बॉन्ड्स, but they are forming metallic bonds. I don't know, students from the first lecture, from the first chapter, states of matter and all, remember हमने ये सब किया था, metallic bond, covalent bond, ionic bond. Yes. हमने किया था. Yes. So these atoms, they are placed, ठीक है, they are just placed, they are arranged in a regular manner. 12th में आप solid state में और detail में पढ़ोगे इसके बारे में. So there is no bond, but they are there. What do we say? Closely packed to each other. So now the distance between the centers of the two metallic atoms, when you divide it by 2, is going to give me the metallic radius. Logic is same. जो covalent radius था वैसा ही metallic radius भी है, but वो मैंने non metals के specific रखा, ये मैं metals के specific रख रहा हूँ. Metallic crystal होता है. This arrangement which you see over here is like a metallic crystal. Okay, so metallic crystal, crystalline substances, so different types of crystalline bodies and all this you will learn in 12th standard beta. पर एटम सेम एलिमेंट है ना? हेलो. यस सर, एटम ये सब सेम एलिमेंट है ना? एटम और ये क्या? ये जो आपने साइड में yes, एटम yes, लिखा है, absolutely, absolutely. ये सब एक ही एलिमेंट का मेटल्स है. ये सब एक ही एलिमेंट का एटम्स है. सपोज कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, तो ये सब एक ही एलिमेंट का मेटल एटम्स दिख रहा है जो अरेंज्ड है. यू राइट बेटा. तभी हम लोग उसको रेडियस बोल पाएंगे ना. अगर अलग अलग एटम्स रहेगा तो यू कैन नॉट कंक्लूड इट टू द रेडियस, बिकॉज रेडियस हमको एक एटम का ढूंढना है. तो कॉपर का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे. कॉपर के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज 206 picometers. The distance between the center of the two copper atoms is 256 meters. तो भाई जी क्या होगा इसका रेडियस? 128 meter. 128. Very good. Just simply divide it by 2.
So you talk about covalent radius or you talk about metallic radius, they are measured by X-ray and electroscopic methods. There are nice methods, X-ray methods, spectroscopic method. In सब methods से the scientists they find out the radius and all. मस्त है, बड़ा बड़ा मशीन होता है, interesting methods होता है, graphs होते हैं, तब जाके उनको ये रेडिया मिलता है. Now when I talk about atomic radius across the period and down the group, ये starting में भी discuss किया था. Across the period it decreases and down the group it increases. ठीक है, this way. ये भी मस्त है ना, एटॉमिक साइज के हिसाब से एक ब्यूटीफुल चार्ट दिख रहा था सामने आपको. So why is this happening? Why is it decreasing in the period across the period? Why is the atomic size decreasing? This is decreasing because of the effective increase in the nuclear charge. Nuclear charge is nothing but the net positive charge experienced by the center of the atom. तो अगर आप देखेंगे from lithium to neon, अगर हम इस तरीके से जाएंगे from lithium to fluorine, the number of shells is constant. 2 shells है सबके अंदर, but हर एक के अंदर उसी शेल के अंदर एक एक करके इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है. और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है ना बेटे, आप न्यूक्लियस की तरफ देखो, न्यूक्लियस का साइज बढ़ रहा है. न्यूक्लियस का साइज क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज प्रोटॉन्स भी बढ़ रहा है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है. शेल्स नहीं बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहा है और वही शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहा है. उसकी वजह से ये जो मेरा न्यूक्लियस है उसके अंदर इतना पॉजिटिव प्रोटॉन्स आ गया है, तो वो इफेक्टिवली उतने रेडियस के अंदर ज्यादा अट्रैक्शन कर सकता है. सेम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स हैं, तो जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा इट विल अट्रैक्ट मोर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड द साइज विल श्रिंक एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. डिड यू गेट दिस कॉन्सेप्ट बेटा? Yes. Yes. अच्छा, आ जाओ. ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज विल कीप द इलेक्ट्रॉन्स इंटैक्ट. Look at this atom. Now you need to understand one concept, a concept of shielding effect. Have you ever heard of this shielding effect or screening effect? No. No. You haven't heard of it. Okay. Now look at this diagram beta. सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है. वो येलो कलर क्या दिख रहा है हमको? न्यूक्लियस. और आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तुमको? एक इलेक्ट्रॉन है, फिर उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन अंदर एंड सो ऑन. नाउ ट्राई टू इमेजिन the scenario of attraction between the nucleus and the outermost electron. वो outermost electron और nucleus के बीच में कितना ऑर्बिट्स है बेटा? 1 2 3 4 5 ऑर्बिट्स आ रहा है. Yes. राइट. Yes. वो 5 ऑर्बिट्स के अंदर इतना सारा इलेक्ट्रॉन्स भी है. Yes. Right. Yes. In those 5 orbits there are so many electrons. Now these Yes. electrons and these orbits, they are standing like a shield, they are standing like a screen between the last electron and the nucleus. So nucleus cannot have so much of effect on the last electron because of the inner orbitals and the electrons between them. This is called as shielding effect or screening effect. ये जो अंदर के ऑर्बिटल्स हैं, अंदर के ऑर्बिट्स हैं, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, they are standing like a screen between the nucleus and the electron, and that is why the nucleus cannot attract the outermost electron so strongly. Now did you understand this concept of shielding effect or screening effect? Yes. Yes. Please repeat. I will repeat it. I'll repeat it, beta. Now suppose I am in the classroom, okay beta, and I am the nucleus, I am the center of the class. Center बोले तो अभी आप एक साइड से ही समझो, और मेरे सामने benches are kept. On these benches you all are sitting, you all are students, ठीक है. I am the nucleus, you all are the electrons, and the benches are the orbits and orbitals. Now tell me one thing, I will be able to attract, I will be able to
have a strong hold on students who are sitting on the first, second and third benches. वो लोग कुछ भी मस्ती करेगा, ऐसा मस्त में लंबा हाथ करेगा एंड कान के नीचे बजाएगा, उनको बोलेगा चुप बैठो. But think about the students who are sitting further away, far away on the last bench. अभी लास्ट बेंच तक मेरा हाथ जाएगा क्या बेटा इतना लंबा? I am not कानून, right? My hands are not लंबा. So my hold, my influence over the students in the last sitting on the last bench is going to be weak, because between me and the last bench students there are students in between, there are desks in between. समझा बेटा? Yes, sir. Thank you. वैसे ही न्यूक्लियस और लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में ये इनर ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स है जो उसका और लास्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन में बाधा डालते हैं, शील्ड डालते हैं, स्क्रीन डालते हैं. दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट. कळलं का रे? हो. व्हेरी गुड. आता मला सांगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट वाढला तर ऍटॉमिक साइज वाढणार की कमी होणार? बढ़ेगा. बढ़ेगा बेटा. बढ़ेगा. वेरी गुड. अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली एटॉमिक साइज भी ज्यादा रहेगा. सो स्क्रीनिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज. Yes. 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 Nuclear charge is directly proportional to atomic size or inversely proportional to atomic size? Inversely. Inversely proportional. जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना छोटा उसका साइज होता Size, जाएगा. yes. So nuclear charge is inversely proportional. Screening effect is directly proportional. And what about number of shells? Number of shells in an atom is directly proportional to atomic size or inversely proportional? Directly proportional. Very good. Directly proportional. Directly proportional because जितना shells बढ़ेगा उतना मेरा साइज बढ़ेगा. इसीलिए एक क्वांटिटी बढ़ रही तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही. बढ़ रही है. Very good. So I hope I am clear in explaining you what is shielding effect and what is. Yes. Yes. Okay. Yes. ये देखो, ये inner orbitals. So जो last electron है, it doesn't experience so much of force. So as you move from left to right, nuclear charge is increasing by 1 unit in each succeeding element. है ना? जैसे जैसे atomic number बढ़ रहा है, nuclear charge is increasing by 1. Yes. Yes, because Yes. क्या बोलते हैं, ये बढ़ रहा है, क्या बोलते हैं? Electron. Yes, beta. Electrons as well as protons. Like this. See. So, number of orbits is same. Same hai, but electron is being added to the same last orbit and nucleus में protons बढ़ रहा है. Nucleus में protons बढ़ रहा है तो proton का strength बढ़ता जा रहा है. तो क्या करेगा? Positive charge बढ़ रहा है and it is attracting the last shell का electrons more closely towards itself. And that is why the atomic size is decreasing, as you can see on the screen. Now, when I talk about down the group, the atomic size is increasing with the increase in atomic radius. So, what are the reasons for this? Down the group also atomic number is increasing. Down the group also nuclear charge is increasing. Then why down the group the size is not increasing? New shell is increasing. Very good. Because for every period we move down, a new orbit is added, a new shell is added. Because of this new shell, the size automatically increase. Whenever we compare nuclear charge and number of shells will always dominate over nuclear charge. तो जैसे ही शेल बढ़ाएगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा. शेल्स बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने से shielding effect or screening effect भी बढ़ेगा. That is why down the atomic size will increase. New energy shells are added in the each succeeding element. ठीक है? In other words, you can see this principal quantum number n is increasing.
कुछ याद आया? मैंने बोला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, डरे तो नहीं ना तुम लोग? नहीं नहीं नहीं, No. रिमेम्बर मैंने डिस्कस किया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजोमिथल Yes. क्वांटम नंबर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप ये सब पढ़ने वाले हो। तो इन द group when I move downwards, the principal quantum number is increasing by 1. Principal quantum number मतलब simple, the number of shells. Principal quantum number tells you how many shells are present in an atom. So if n is equal to 5, it means 5 shells are present in that particular atom. एटम आ जाओ। When n is 2 and n is 7, कितना डिफरेंस दिखता है बेटा एटम के साइज के अंदर? 2 शेल्स और 7 शेल्स में। सिंपल, शेल्स बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा। ये देखो, Yes. 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 simple. That is the reason why the size of the atom is increasing down the ये देखो, noble gases should have the smallest sizes when we are moving across the period. When we are moving across the period, the size of the atom continuously goes on decreasing. अगर ये लॉजिक हम लगाएंगे तो नोबल गैसेस का साइज सबसे छोटा होना चाहिए बिकॉज वो सबसे लास्ट में प्लेस्ड है पीरियोडिक टेबल में, राइट? Yes. But this is not observed. If you look at the size ka chart in front of you, it is beautifully shown how the size is increasing from lithium to fluorine and sodium to chlorine. But when you see the size of neon and argon, it increases all of a sudden. It increases. Now, why is this happening, beta? Because uske last shell mein na electrons are completely filled. Stable electronic configuration. Yeah. So what happens is they are monoatomic molecules. Monoatomic मतलब इनका मॉलिक्यूल में भी एक ही एटम होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। जैसे क्लोरीन में Cl2 होता है, वैसे हीलियम में He2 नहीं होता है, नियॉन में Ne2 नहीं होता है, ठीक है? Their outermost orbits are filled. Their outermost orbits are filled with electrons completely. Because they are filled with electrons completely, there is repulsion between the outer shell electrons because they are क्या बोलते हैं, lightly charged at species. Because of this repulsion, there is a slight increase in size as compared to the inner atoms. So here radii of my noble gases with other elements. You cannot compare it with covalent radius. You cannot compare it with metallic radius. अभी क्लोरीन में कोवेलेंट रेडियस देखा, नाइट्रोजन में होता है, हाइड्रोजन में होता है कोवेलेंट रेडियस बिकॉज उनका मॉलिक्यूल H2, Cl2, क्या बोलते हैं O2, N2, F2 ऐसा होता है, राइट? बट He2 नहीं होता है, Ne2 नहीं होता है, तो उसका कोवेलेंट रेडियस भी नहीं निकाल पाऊंगा बिकॉज दो एटम होता ही नहीं एक मॉलिक्यूल में। तो उसके लिए मैं कौन सा रेडियस स्पेसिफाई करूंगा? वैन डर वाल्स रेडियस. Van der Waals radius, I had taught you in the very first chapter that Van der Waals force is a weak force of attraction between two bodies, if you remember. असं रिवाइज करत जा तुम्ही घरी बसून बसून, ओके? हो सर. अच्छा, तो that is why we will have to compare the Van der Waals radius with other Van der Waals radius. So when you compare this, the atomic radius is high. This is happening because last shell में 8 इलेक्ट्रॉन्स है हर एक के पास, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है। वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने के कारण इसका साइज क्या बोलते, रिपल्शन होने के कारण साइज बढ़ता है। ओके गाइस, सर रिपीट करो ना। बेटा रिपीट. सर रिपीट करो। रिपीट करेगा, ओके। अभी बेटा ऐसा एज्यूम करो कि लास्ट बेंच पे ना फुल हो गया है, बच्चे का बैठना इज फुल। तो अभी मैं आपको काम दिया, बोले लिखो भाई बोर्ड से, तो आप लिखोगे। फुल मतलब इट्स कंप्लीटली पैक्ड ना। तो जब आप लिखने के लिए हाथ उठाओगे, आप किसी का एल्बो किसी की आंख में जाएगा, किसी का चश्मा टूटेगा, किसी का सर फूटेगा।
मतलब यू विल बी वेरी अनकंफर्टेबल, सो यू विल ऑलवेज बी रिपेलिंग ईच अदर। वो बोलेगा तू उधर खसक, वो बोलेगा तू इधर खसक, वो बोलेगा मेरे पैर पे से पैर निकाल, मेरे हाथ में से हाथ निकाल, एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? बिकॉज यू आर टाइटली पैक्ड, यू आर packed over there, because of which repulsion is going to happen between you guys, because of which what happens is टीचर बोलेगी ए भाई एक चेयर लाके बैठ जाओ और आराम से बैठ जाओ वहां पे, ऐसे। तो we will have to space up between you guys for you to be comfortable. So to increase the space between you, when जब space बढ़ाएंगे तो अगर मैं देखूंगा तो ऐसा लगेगा कि मैंने टेबल का साइज बढ़ा दिया, राइट? तो जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, वो लोग 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करते रहते हैं, आपस में भी रिपेल करते हैं। तो ये रिपेल होने की वजह से, रिपल्शन की वजह से साइज बढ़ता है। ओके? Yes. यस, नो, Okay. मे बी? Yes. Yes, sir. ओके, ओके, आ जाओ। वैन डर वाल्स रेडियस। रेडियस कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं? अभी ये नोबल गैस का केस लेते हैं हम लोग, जिसमें बॉन्ड नहीं बनाता है एटम दूसरे के साथ। दिस एटम इज नॉट फॉर्मिंग बॉन्ड विथ अदर एटम। तो इसमें यू टेक क्या बोलते हैं, यू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट और नेबरिंग एटम्स, ठीक है? इट्स अ वेरी अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस, और उसको हम लोग हाफ करते हैं, उसको हम लोग हाफ करते हैं। इसमें बहुत ही अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, बिकॉज this distance is never fixed, because the force of attraction between them is very poor. सर रिपीट करो ना एक बार। कोवैलेंट रेडियस समझा था तुमको? मेटालिक रेडियस समझा था? यस Yes. टू कोवैलेंट बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस को हमने आधा किया। मेटालिक में दो एडजेसेंट मेटल एटम्स के बीच के डिस्टेंस को हमने हाफ किया। उनके डिस्टेंस मतलब उनके न्यूक्लियाई के डिस्टेंस को। Van der Waals radius में we are doing the same thing, but the problem is यहाँ पे the atoms are not joined, they are just feebly or very weakly attracted towards each other. तो वो एक दूसरे से टच नहीं होंगे, एक दूसरे के बहुत करीब होंगे, they will be very close to each other. उस टाइम पे I will measure the distance between the two nuclei and take the half and average it out. That is going to be the Van der Waals radius. सर दोनों सेम एटम हो गए? Obviously, yes, that is very much compulsory. Radius कभी भी ढूंढते वक्त हम सेम एटम की ही बात कर रहे हैं। दो अलग एटम्स का डिस्टेंस लेकर के तो कोई मतलब नहीं बनता ना बेटा, हमको उसका साइज जानना है, तो सेम एटम ही होंगे। ओके बेटा? Yes. अच्छा, नोबल गैस के लिए सर। now this Van der Waals radius is generally, Van der Waals radius जो है ना बेटा, this Van der Waals radius is generally larger than covalent radius and metallic radius, for obvious reason। दिख रहा है सामने सामने, covalent radius और metallic radius में atoms टच रहते हैं, इसमें atom टच नहीं है, तो obviously इसमें distance ज्यादा आएगा, है ना बेटा? Yes. Yes. I hope you all are visual, you all are looking at it and understanding thing. Yes, sir. So always remember, Van der Waals radius is going to be greater than covalent radius or metallic radius of the same element. सर ये वैन डर वाल्स बोलो। रेडियस मेटल्स के लिए भी यूज हो सकता है? बिल्कुल बेटा, ये तीनों रेडिया जो है ना बच्चे, ये हम कोवैलेंट रेडियस जनरली हम नॉन मेटल्स में ढूंढते हैं, मेटालिक रेडियस हम मेटल्स में ढूंढते हैं। अगर आप क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स का वैन डर वाल्स रेडियस भी निकलता है, मेटल्स का भी वैन डर वाल्स रेडियस निकलता है। वैन डर वाल्स रेडियस इज नथिंग बट अ कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू adjacent atoms. Now these two adjacent atoms can be touching each other, they can be bonded to each other, or they can just be close to each other. At that time when you're taking the distance between the center of the nuclei, that is the diameter of those two atoms of that one atom which you're dividing into half. Okay or nahi? ओके सर। समझा बेटा? पक्का? हाँ हाँ हाँ। Yes. Everyone understood this? Yes. Yes. Achha. So you remember this, huh? Van der Waals radius is greater than the covalent radius and metallic radius. I hope you all are taking down notes and all, huh? तुम लोग लिख रहे हो जरूरी चीजें जो भी है। यस सर। Yes. आपको लिख लिया ये?
Yes, sir. Yes. अच्छा, देखो मस्त एटम है जिसमें सोडियम है, जिसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। ये मस्त एटम्स आराम से अपना दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है। फिर अचानक से क्या होएगा? This is going to form a ion. Why? Because it wants to become stable. So it will lose that last 1 electron. वो लास्ट 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये Na से Na प्लस हो जाएगा, सोडियम एटम बन जाएगा, सॉरी सोडियम आयन बन जाएगा, राइट? Yes. तो वो टाइम Yes. पे अभी देखो ये एटॉमिक रेडियस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ सोडियम न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द सोडियम एटम. दिस इज द एटॉमिक रेडियस. अब जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, शेल गया, कोई शेल बचे तो क्या हो गया? इसका आयनिक रेडियस हो गया. दिस हैज कन्वर्टेड इनटू अ आयन. So now the distance between the center and the outermost shell is this the ionic radius. तो बेटा what did you just see? सोडियम एंड सोडियम प्लस. सोडियम के अंदर एटॉमिक रेडियस, Na प्लस के अंदर आयनिक रेडियस. कौन सा बड़ा रहेगा, एटॉमिक रेडियस की आयनिक रेडियस? Atomic Atomic एटॉमिक एटॉमिक रेडियस. ये दिखती सी बात है बिकॉज पॉजिटिव आयन में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है. एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है मतलब comparatively the number of protons have increased, because of which the nuclear charge has become more stronger. So it will attract the electrons more strongly because एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है तो एटम श्रिंक होता है. श्रिंक होता है मतलब एटॉमिक रेडियस कम होता है. यहाँ पे that becomes ionic radius. Ionic radius. Positive ions का radius is always smaller than the original atom. Sodium का radius will be bigger than Na plus का radius. Clear? यस. Yes. ठीक है. So when this atom loses a electron, positive ion. अभी एटॉमिक रेडियस की अगर मैं बात करूं, इसकी आयनिक रेडियस की, it follows the same trend like atomic radius, decreases across the period and increases down the group. अभी when atoms are losing electrons, they are forming ions, positive ion. Always remember, cation is having smaller radii as compared to the original atom. सोडियम एटम आपके सामने है, Na plus आपके सामने है. Like I said, it increases the nuclear attraction between the nucleus and the valence shell electrons. So atom का size is always greater than its corresponding cation. आ जाओ. सोडियम का एटॉमिक रेडियस इज 186 पिकोमीटर्स, बट Na प्लस सोडियम आयन का रेडियस इज 95 पिकोमीटर्स. ये एग्जांपल के तौर पे याद रखना आप, ठीक है बेटा? ये बहुत छोटी चीजें हैं, ये बेसिक चीजें हैं. ये बेसिक चीजें आप अच्छे से याद रख लो तो आपको केमिस्ट्री कभी डिफिकल्ट नहीं जाएगा. आपको इस स्मॉल कॉन्सेप्ट के ऊपर एंट्रेंस एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. सो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रहता है, थिंग्स आर गोइंग टू बी इजियर, लाइफ इज गोइंग टू बी इजी. अभी लेट अस टॉक अबाउट नेगेटिव आयंस. फ्लोरीन की बात करते हैं बेटा, ठीक है? ये फ्लोरीन का एटम है. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स. मस्त फ्लोरीन का एटम घूम रहा है. इसको स्टेबल होने को ना 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए लास्ट शेल में. तो अभी इस टाइम पे जो इसका रेडियस रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी द एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन एटम. इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया. इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया ना, तो जो आयन बना, एनायन बना, जो नेगेटिव आयन बना, उसका साइज विल इंक्रीज. उसका साइज विल इंक्रीज बिकॉज प्रोटॉन्स तो फिक्स्ड है. जो प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर है वो फिक्स रहेगा, बट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया है तो वो प्रोटॉन के पास उतना एनर्जी नहीं है उतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने का. प्लस एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ है जिसकी वजह से रिपल्शन बढ़ेगा अमंगस्ट द अदर इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से साइज बढ़ जाएगा. सो द एटॉमिक साइज इज ऑलवेज लेस देन द करस्पॉन्डिंग एनायन. एटॉमिक साइज इज ग्रेटर देन द कैटायन बट लेस देन द एनायन. बाउंसर गया बेटा?
No. No, sir. Sir, repeat. एडिशनल इलेक्ट्रॉन जो ऐड हुआ बेटा लास्ट शेल में, वो इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ा देगा, जिसकी वजह से साइज बढ़ेगा। अभी फ्लोरीन के अंदर से 9 प्रोटॉन्स थे, बट अब ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, बट प्रोटॉन्स अभी भी 9 ही हैं। तो इसीलिए न्यूक्लियर चार्ज एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस, because of which repulsion between the electrons is more, because of which size is going to expand as compared to the original atom. Size of the anion is always going to be larger than the corresponding atom. So if I talk about the size of fluorine bicast radius is 64, and fluoride ion F minus का जो radius होता है that is 136 picometers. That is the difference between the sizes of a atom and the corresponding anion. कळलं का रे सगळ्यांना? Yes. Yes. Good. Now this variation also depends on the effective nuclear charge. Now look at this change in the radius in picometers and group 1 element. Group 1 size is increasing, right? Atomic and ionic. नीचे आयनिक साइज दिया है, ऊपर एटॉमिक साइज दिया है. पॉजिटिव आयन है इसलिए उसका साइज छोटा रहेगा. Simple as that. Have you heard of something called as isoelectronic species? No. No. Isoelectronic species are those species in which the number of electrons is same. Sir, repeat one. हाँ मैं बताएगा बेटा, बताएगा. ये देखो, this is what I mean by isoelectronic species. Isoelectronic species are those species in which the number of electrons is same, but number of protons definitely is going to be different. अभी ऑक्सीजन के लास्ट शेल में अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो O2 माइनस आयन बन जाएगा. Yes. Yes. ओके बेटा, तो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा 10, बिकॉज उसके 10. पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स था, मैंने 2 ऐड करके उसका ऑक्टेट कंप्लीट करा है. अब कंसिडर एल्यूमिनियम के अंदर 13 इलेक्ट्रॉन्स होता है. अगर मैं उसके लास्ट शेल का 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूं तो उसके कौन सा आयन बनेगा? Al3+. ठीक है, Al3+ आयन बनेगा. Al3+ आयन के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है? अभी 10. ऑक्सीजन O2 माइनस के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है, Al3+ के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है, Mg2+ के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है, Na+ के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है. आपको दिख रहा है सामने चार्ट? Yes. आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बेटा? These are isoelectronic species. Iso means same number of electrons in these species is, that's why they are called as isoelectronic species. Now if I compare their sizes, the negative anions will obviously have a larger size as compared to the positive क्या बोलते हैं cations. But अभी यहाँ पे ध्यान दो बेटा, ये सबके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी इनका साइज डिफर हो रहा है. क्यों? Some are anions and some are cations. Yeah, that is agreed. If you leave, just look at anions. Forget about the positive atoms. First, look at only the negative atoms. हर एक का number of protons is different, बेटा, correct? Yes. Yes. अच्छा, number of protons different है, number of electrons same है. जिसके पास कम प्रोटॉन रहेगा उसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल्शन करेगा मतलब बड़ा साइज होगा. As compared to N3- and F-, नाइट्रोजन का -3 एनायन and फ्लोरीन का -1 एनायन,
ये दोनों के अंदर साइज का इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि फ्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन्स है और नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन्स है। फ्लोरीन के पास ज्यादा प्रोटॉन्स है, इसीलिए एज कंपेयर टू N3- वो इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा ज्यादा कंट्रोल कर सकता है। इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल कर सकता है मतलब एज कंपेयर टू नाइट्रोजन उसका साइज कम हो जाएगा। Yes. समझे? Yes. नहीं हाँ सर yes नहीं yes समझे? ओके, No, कोई बात sir. नहीं। आई विल रिपीट इट बेटा, आई विल रिपीट इट। गुड। नाउ consider N3-, O2-, and F-, only the negative ions which I am talking about. हर एक के shells में 10 electrons each है. There are 10 electrons in their shell. But if you look at their nucleus, they have different number of protons, 7, 8 and 9, right? अब Yes. जिसके पास ज्यादा प्रोटॉन है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा इजीली कंट्रोल कर पाएगा एज कंपेयर टू द वन व्हिच आर हैविंग लेस प्रोटॉन्स, Yes. राइट? यस हाँ, सो इसीलिए इन एनायंस more the number of protons smaller the size, less the number of protons bigger the size. In isoelectronic species, तो अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं दिया, किसी का माइक बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है बेटा, सब लोग म्यूट पे चले जाओ। हाँ, गुड। अब देखो, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अरेंज द फॉलोइंग एटम्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयनिक रेडियस, और आपको आयनिक रेडियस का वैल्यू नहीं देंगे, सिर्फ सिंबल देंगे, N3-, O2-, F-। नाउ वी ऑल नो द atomic number of nitrogen is 7, oxygen is 8 and fluorine is 9. सिंपल। N3- मतलब उसके अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया है। सॉरी, आई एम सो सॉरी, N3- मतलब उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। मेरे को करेक्ट करने के लिए कितने फटाक से माइक खोलते हो। N3- मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। O2- मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। F- मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। अगर मैं इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अगर मैं एटॉमिक नंबर में वो नंबर ऐड करूं तो मुझे सबका नंबर क्या आएगा? 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। That was very bad, beta. Please work on the mute mic. Yeah. So इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, हर एक स्पीशीज के अंदर, और हर एक का प्रोटॉन इज डिफरिंग। जिसके पास ज्यादा प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्ट्रांगली कंट्रोल कर पाएगा, अट्रैक्ट कर पाएगा मतलब साइज छोटा रहेगा, और जिसके पास कम प्रोटॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन रहेगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स का साइज बढ़ेगा। अयो yes yes Yes. Yes. Yes, sir. Yes. तो एनायंस के अंदर क्या रहेगा ना बेटा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा उसका साइज, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा उसका साइज। नाउ कम टू पॉजिटिव आयंस, Na+, Mg2+, Al3+। हर एक का एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, 11, 12, 13, बट Na+ मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, Mg2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, Al3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हर एक के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं हर एक के अंदर। बट इफ यू लुक एट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इट इज डिफरेंट। तो सबसे ज्यादा प्रोटॉन्स किसके पास है? एल्यूमिनियम के पास। और सबसे कम किसके पास है? सोडियम के पास। तो एल्यूमिनियम के पास प्रोटॉन ज्यादा है, तो और इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 10। 13 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को इजीली कंट्रोल कर सकता है, इसलिए सबसे छोटा साइज एल्यूमिनियम का होगा, और इन द पॉजिटिव आयन सबसे बड़ा साइज सोडियम का होगा। तो अगर आपको पॉजिटिव आयंस दिया जाएगा फॉर कंपेयरिंग द साइज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज, जितना कम पॉजिटिव चार्ज उतना बड़ा साइज। डिड यू अंडरस्टैंड दिस नाउ? Yes. yes Yes. तो अगर आपको ये टेबल बना लिया सबने, ये प्लीज बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अलग अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके ऊपर। Done, sir. Done. Increase the ions in the increasing order of their size, in the decreasing order of their size. बेटा किसी को भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लो बच्चे। किसी को डाउट नहीं है? I'm happy that you all are understanding. I'm happy.
हो गया तो कैन वी गो अहेड? Yes. No, sir. बोलती नो सर। लिखो बेटा, कोई बात नहीं, आई विल वेट। हो जाए Sir, तो done. बता। वेरी गुड बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। सर हाँ बेटा, आपने लास्ट स्टेटमेंट जो बोला वो रिपीट करो ना। मैंने लास्ट स्टेटमेंट बोला वेरी गुड बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। वो वाला नहीं, तो कौन सा बेटा? जो एक्सप्लेन कर रहे थे उसका एक्सप्लेन जो करते वक्त last- मैंने ये बोला था कि जितना ज्यादा, द मोर द पॉजिटिव चार्ज, द स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन, द लेस द नेगेटिव द पॉजिटिव चार्ज, द बिगर द साइज ऑफ द कैटायन। कैटायन में जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज, एनायन में जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज। ओके बेटा, ओके सर। वेरी गुड। Please repeat. अगेन रिपीट करूं? रिपीट। In anion, anion मतलब negative ion. In negative ions, the higher the negative charge, the larger the size. In cations, the higher the positive charge, the smaller the size. Okay? सर उलट बोलले तुम्ही. नाही, बरोबर बोलला ना? Higher the पहिलं वाला उलट बोलले. पहिला ज्याची साईज म्हणजे प्रोटॉन्स कमी असणार त्याची साईज मोठी राहणार. तुम्ही हे आहे, मी प्रोटॉनचं नाही सांगितलं, मी याचं सांगितलं, नेगेटिव्ह चार्जचं सांगितलं बेटा, प्रोटॉनचं नाही सांगितलं. नेगेटिव्ह चार्ज जास्त, -3 जास्त आहे म्हणून याचा साईज जास्त मोठा राहणार, आणि पॉझिटिव्ह मध्ये +3 जास्त आहे तर मग याचा साईज कमी राहणार असं सांगितलं. अच्छा. ओके बेटा? हा. काय क्या हुआ बेटा? कैन वी मूव अहेड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So these are your isoelectronic species. As the nuclear charge increases, the force of attraction of the nucleus on the electrons also increases, and as a result, the ionic radius decreases. ये देखो इनका visual representation कैसा होगा. Move on to, it's just that what I just said. Now atomic radius, ionic radius, isoelectronic species, ये टॉपिक हो गया. Let us move on to ionization enthalpy. मैंने कल आपको एक brief बताया था about ionization enthalpy. Anybody remembers? मैंने आपको 3 words बताए थे ये इस चीज के लिए, ionization enthalpy के लिए. Energy Energy potential. Energy potential. Potential. Very good. Ionization potential, ionization enthalpy, and ionization Energy. 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 सब एक ही है, सब सेम ही है, ठीक है? तो the amount of energy required to remove the most loosely bonded electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom is called as your ionization enthalpy. एक सिंगल एटम, आइसोलेटेड मतलब अकेला, अलग, एक अलग एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलने को, लास्ट शेल में से लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कितना क्या एनर्जी लग रहा, दैट इज आयनाइजेशन. ये देखो, दिस इज एन एटम X, ये इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, तो X में से इलेक्ट्रॉन निकाला और उसको पॉजिटिव आयन बना दिया. एंथैल्पी इज किलो जूल्स पर मोल. जूल समझता सबको? Yes. तो किलो मतलब इनटू 10 to the power 3, सिंपल. पर मोल, एक मोल को कितना लगेगा, दैट मींस पर मोल. मोल रेज टू -1 मींस पर मोल ओनली. ये पता सब लोग को? ये MOL रेज टू -1 मतलब क्या, किलो जूल पर. पर का साइन मतलब वो डिवीजन का साइन होता है. अगर डिवीजन का साइन मेरे को नहीं बनाने का है तो मैं जो नीचे वाला टर्म है उसको -1 करके लिख सकता हूँ, राइट? Yes, yes, yes. वेरी गुड. Yes. सो सिंस इट इज एनर्जी, उसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल्स एंड किलो जूल्स. ये देखो,
दिस इज एनर्जी, ब्लू कलर का, इसको निकालने के लिए एनर्जी लग रहा, ठीक है। नाउ एनर्जी ऑलवेज, ये जो प्रोसेस है हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, ये निकाल के हीट रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो इट इज ऑलवेज, आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर ऑलवेज पॉजिटिव, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव, बिकॉज आपको उतना एनर्जी लगेगा, आप उतना एनर्जी मतलब उसमें से निकालने के लिए मुझे उतना रिक्वायर है, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा एनर्जी, दैट्स व्हाई आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर ऑलवेज पॉजिटिव। सर न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट मध्ये काय होतं? कळा? न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट मध्ये काय होतं? न्यूक्लिअर युरेनियम. पॉवर प्लांट मध्ये काय होतं, त्याच्यात ना आपलं न्यूक्लियस असते ना, न्यूक्लियस, त्या न्यूक्लियसला बॉम्बार्ड करून, न्यूक्लियसला एकदा बॉम्बार्ड केलं ना तर त्याच्यातून खूप खूप एनर्जी निघते, ती एनर्जी जेव्हा निघते ना बाळा, त्या एनर्जीला हार्नेस करून, त्या एनर्जीला प्रॉपर स्टोर करून त्याच्यातून इलेक्ट्रिसिटी करायची, त्याच्यातून वेगवेगळे प्रकार करायचे युजिंग ऑफ न्यूक्लिअर एनर्जी, ते खूप चांगलं पण असतं आणि डेंजरस पण असतं, असं आहे. तर कळलं न्यूक्लिअर एनर्जी? थँक्यू. वेगळे, हा वेगळे, दिस इज इलेक्ट्रॉन दॅट इज बॉम्बार्डिंग न्यूक्लियस, टू डिफरंट कॉन्सेप्ट्स ऑल टुगेदर बेटा. Yes. Beta, I'm so sorry I missed this. Now, did you look at this atom over here? Yes. कुछ भी बोलूंगा, यस, देखो, look at this atom. ये एक एटम है, दिस इज अ एल्यूमिनियम एटम, बट लेट अस कंसीडर इट एज अ जनरल एटम, लेट मी नॉट गिव इट द नेम ऑफ एल्यूमिनियम, इसको एक जनरल एटम एक्स करके मैं ले रहा हूँ, ठीक है। सो दिस एटम, ये जो आपको सामने दिख रहा है, इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब इसको मुझे पॉजिटिव आयन में बनाने का है, पॉजिटिव आयन में बनाने के लिए मुझे उसके लास्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ेगा, राइट? Yes. अगर Yes. अगर मुझे इसको x+3 बनाना है, x+3, तो मुझे तीनों इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। Yes. अब तीनों Yes. इलेक्ट्रॉन थोड़ी एक साथ Yes. निकलेंगे, एक एक करके निकलेंगे, तो जब भी पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसको अपन बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और हाई E1, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और हाई E, IE1. 1. हाँ बेटा, हाई E1. Now, energy required to remove the second electron is going to be called as high E2, and third निकालने के लिए high E3, है ना बेटा? Ionization enthalpy IE1, IE2, IE3, ये समझा तुम लोग को? Yes. 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 Now my question to you before I move further, I want you to tell me the relation between, don't Google, don't check, answer with your abilities, IE1, IE2 and IE3 क्या होगा? All will be same, it will be in increasing order, it will be in decreasing order. सोच के बताओ, don't jump to conclusions, one person at a time. It is the amount of energy which is required to remove the electron from the last shell. 3 इलेक्ट्रॉन्स था लास्ट शेल में, मैंने एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स निकाला, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो +1 हुआ, दूसरा निकाला तो +2 हुआ, तीसरा निकाला तो +3 हुआ। 3 एनर्जीज है, आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, आयनाइजेशन एंथैल्पी 3, I1, I2, I3. What is the relation between this I1, I2, I3? They will be same, they will be different. 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 They will be different बोलते हैं। Different. Same. Why? Same. 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 Different. अच्छा, same. Different है. Okay, I'm Yeah, getting a different mixed. होगा ना। I'm getting Different. mixed answers. Same and different करके ऐसा मेरे को 2 answers मिला है। Energy is decreasing. Energy Yes. is decreasing बोलता है। Decreasing. कौन बोलता है Energy is decreasing? हाँ, बोलो बेटा, बोलो। बोलो. Why do you say that ionization enthalpy will be less as compared to, no, sorry, will be more as compared to IE2, will be more as compared to IE3? This is what you mean, right? No. Yes. No? Yes. Yes, yes. 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 Okay. Now let hold on. अच्छा, कुछ हो जाएगा. Manali, Manali, Jawan, are you there, beta? Yes, sir. Hi, beta.
What do you think it's going to be the relation between IE1, IE2 and IE3? Equal रहेगा, same रहेगा, कम होएगा, ज़्यादा होएगा? Increasing order, decreasing order or equal? I think decreasing order रहेगा. I think decreasing order रहेगा. मतलब IE1 will be more as compared to IE2. That will be more as compared to IE3, right? Yes. Okay, okay. अच्छा, न्यू गाइस, नए बच्चों का नाम क्या था? मेरे को किसी का भी याद नहीं. कल बात की थी हमने. New guys, I don't remember your names. Who was it yesterday? एक केदार, तू नया नहीं है, तू पुराना है बेटा. I think नए बच्चे. I want to ask some of them. कोई नहीं. Nobody wants to answer. Don't worry, man. I'm not even in front of you. I won't even shout. मैं सामने होता तो वो भी नहीं चिल्लाता. That's a different story. But still. Anyone? Yeah, who's this? No one? कोई बात. Yes, Kedar, let's talk to you then. सर इन्क्रीजिंग मध्ये राहील. Increasing मध्ये राहील असं केदार म्हणतो. आयुष सालुंके. Same रहेगा. Ayush, can I talk to you बेटा? Yes, sir. Hi Ayush. You're saying same रहेगा बेटा. हाँ, सेम रहेगा मुझे लगा. आपको लग रहा है same रहेगा. Okay, okay, no problem. Sir, energy is increasing. किंजल ने कुछ तो आंसर लिखा है, मैंने अभी पढ़ा. Sharon and Kinjal are saying increasing. Kinjal, why do you think it's going to increase बेटा? किंजल ने बोला increase होगा. increase. तेजस. Yes. तेजस महेश मालती गड़गे. ये बेटा दो मतलब बहुत बड़ा नाम है तुम्हारा. तेजस. सर मम्मी का भी नाम डाला है. Oh, I'm so proud of you. I'm so proud of you, beta. You're an inspiration. Whenever I'll have kids, I will name them my name as well as my wife's name and my father's, grandfather's, everyone's names. I'm so happy. Tejas, what do you think? It's going to increase or decrease? Sir, decrease. Decrease. Okay. Yes. Okay. Kinjal, why do you say it's going to increase, beta? The electrons will decrease in first step, but protons will remain same. Very good. So the bonding will increase. They Very will attract good. more. Very So energy to remove the next electron will be more. Wow. Very good, beta. Acha. I think Kedar also had the same answer. है ना Kedar? हो सर. हो, केदारचा पण सेम आन्सर होता. तर आता याच्यात काय होत आहे बाळांनो बघा. जेव्हा मी एक इलेक्ट्रॉन काढतो. एव्हरीबडी अंडरस्टँड्स मराठी? Yes. Yes. Me, I'm a non-Maharashtrian, but I try to speak Marathi because I think my Marathi is good because I had got 83 in boards in Marathi. So, why मेरा mic गिर गया? Yeah. So, when I look at the atom, जेव्हा मी पहिला इलेक्ट्रॉन काढतो या ऍटम मधून तेव्हा इलेक्ट्रॉनचा नंबर कमी होतो पण प्रोटॉन्स तितकेच राहतात. सपोज 2 + 8 + 3 13 प्रोटॉन्स होते आणि 13 इलेक्ट्रॉन्स होते. एक इलेक्ट्रॉन आम्ही काढलं तर इलेक्ट्रॉन किती झाले 12 आणि प्रोटॉन किती झाले तिथेच आहे तितकेच आहेत किती 13. ओके. तर सेकंड ऍटम मध्ये बघा. The attraction between the nucleus and the electrons has become more stronger. Why? Because number of protons is same but electrons has decreased. Look at the third atom. The number of protons is same but electrons has decreased. तो जो न्यूक्लियस का जो स्ट्रेंथ है, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो और स्ट्रॉन्ग हो गया. वो और स्ट्रॉन्ग हो गया मतलब मेरे को लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी लगेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग बेटा? Yes. इलेक्ट्रॉन Yes. लूज होने के बाद न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्गर हो गया. न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्गर हो गया तो मतलब मेरे को दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी लगेगा. इसीलिए IE2 will be greater than IE1 and IE3 will be greater than IE2. So it is going to be in the increasing order. It is not going to be the same. It is not going to be the क्या बोलते तो भी in decreasing order, but it is going to be in increasing order.
IE1, Oh. IE2 and IE3 Sir. solution. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Very good. Second ionization enthalpy will always be higher than the first ionization enthalpy. One removing the electron, okay, this ion form will have more effective nuclear charge. Unipositive ion matlab positive charge is 1, that is unipositive. More effective nuclear charge, because of which the nuclear attraction is going to be increased, because of which सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी लगेगा. सबको समझा बेटा? Yes, sir. Yes. वेरी गुड. Yes, yes. ऐसा ये देख. Look at the variation in the first ionization enthalpies of the first 60 elements. This is how it varies from atom to atom. आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, जितने भी नोबल गैसेस हैं उनका आयनाइजेशन एंथैल्पी कितना हाई है देखो, और जितने भी मेटल्स हैं जिनके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो ऐसे एटम्स का आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो कितना कम है. तुमको ग्राफ पढ़ने को आता है ना बेटा? Yes, sir. Yes, yes, वाई yes, एक्सिस के yes. ऊपर, ओ हाँ भाई हाँ, वाई एक्सिस के ऊपर एनर्जी है, एक्स एक्सिस के ऊपर एटॉमिक नंबर है. अगर आप देखोगे तो सारे मेटल्स जो हैं जिनके लास्ट शेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन्स है वो सब नीचे हैं, और जितने भी नॉन मेटल्स हैं स्पेशली द नोबल गैसेस वो एकदम टॉप पे हैं. ये बेटा नोबल गैसेस 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल स्टेबल, Yes. उसके अंदर से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो उसको बहुत एनर्जी लगेगा. वो बोलेगा मेरे को नहीं देने का इलेक्ट्रॉन, तो काय को ले रहा मेरा इलेक्ट्रॉन, राइट? और जहाँ पे Yes. ये जो नीचे एलिमेंट्स है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है. वो बोलते हैं कि भाई ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले और मेरे को स्टेबल कर दे, तो वो खुद से भी वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेंगे, तो इसीलिए एनर्जी कम लग रहा है. ये मैंने शायद कल भी आपको बताया था. Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. नोबल गैसेस, इनका देखो ये कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. दे हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज एंड दैट्स व्हाई दे आर केमिकली इनर्ट. केमिकली इनर्ट मतलब वो जल्दी से केमिकल रिएक्शंस नहीं करेगा, वो करता है पर बहुत ही स्पेसिफाइड कंडीशंस में करेगा. 12th में देखेंगे ये सब. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट दीस एलिमेंट्स, एक एक तो इनके पास कम ionization enthalpies रहेगा, and they are highly reactive because easily they want to lose that one electron. Now ionization enthalpy it increases across the period. Why? Because size is increasing. Size कम होएगा तो ionization enthalpy बढ़ेगा ना बेटा. Size कम मतलब मेरा electron is more closer to the nucleus. More closer to the nucleus means more strong attraction. More strong attraction मतलब more energy required to remove the electron, right? Yes. हो कि चलेगा? Yeah. हाँ हाँ ठीक है, हो सब. Yes. I think the time is up, Yes. Yes. No. Yes. है ना माधुरी मैडम? माधुरी मैडम? सर, माधुरी मैडम नहीं है, सर हैं. हाँ बेटा बोलो. आपने जो ऑर्बिटल सीखा था ना जब, हाँ तब आपने वो टेबल दिया था ना, फर्स्ट ऑर्बिटल में 1s ऑर्बिटल रहता है, उस टोटल ऑर्बिटल्स कितने रहते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहते हैं. हाउ करेक्ट. यस. हाँ, तो सर उसके अंदर अभी सेकंड ऑर्बिटल में ऑर्बिटल्स फिल्ड 2s 2p है, हाँ तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फिल्ड उसके अंदर क्या लिखा है, 1s ऑर्बिटल प्लस 2p ऑर्बिटल्स, तो इक्वल्स टू 4 ऑर्बिटल्स कैसा है वो समझा नहीं. इक्वल्स टू 4 ऑर्बिटल्स. हाँ, लास्ट में भी वैसे 1s ऑर्बिटल स्टार्टिंग में ना. हाँ करेक्ट. 1s2. अभी सर देखो फिफ्थ में क्या लास्ट ऑर्बिटल्स 5s 4d 5p रहेगा, करेक्ट. तो उसका टोटल ऑर्बिटल्स फील्ड ऐसे दिए 1s ऑर्बिटल प्लस 5d ऑर्बिटल प्लस 3p ऑर्बिटल इक्वल्स टू 9 ऑर्बिटल. करेक्ट. ये नहीं समझा.
अरे ऐसा है। इक्वल्स टू 9 मतलब s के अंदर एक ऑर्बिटल, p के अंदर 3, d के अंदर 5, तो 5 सर एस के अंदर 2 ऑर्बिटल हैं। नहीं, s के अंदर एक ऑर्बिटल, 2 हाँ, इलेक्ट्रॉन्स yes, बेटा। yes, दो yes. इलेक्ट्रॉन 1 + 3 4, 4 + 5 9, ऐसे हो जाएगा। उनका ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं बेटा वो। ओके ओके ब्लॉक से। हाँ यस बेटा। अच्छा अभी सर समझा। रेडॉक्स Thank you. रिएक्शन का वो बाकी था ना, ठीक है ना बेटा, मैं भी तो बाकी हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, डोंट वरी। नाही तो होमवर्क दिला होता तो हो चुकीचा ते मला माहित आहे, तो जे सम दिला होता ते सम रॉंग आहे, त्याला इग्नोर करा. ओके सर होमवर्क हो गया सर। वेरी गुड बेटा, आई एम सो सर रॉन्ग नहीं है। रॉन्ग नहीं है सर। अच्छा, so let's do one thing na, in the next lecture let us start with those homework sums and then we'll continue with this chapter, or rather let us Yes. finish this chapter and then we can come back to the homework. In the meantime I can give you some other homework, hai na? Okay. Okay. Okay guys, I think Okay. today also it was till 5 o'clock 6 o'clock only. Yes. Yes. You have Yes. exceeded the time yes already. yes No, yes 6 9 हो गया ना, इसलिए बोल रहा हूँ. हाँ हाँ I hope you have understood whatever we discussed today. यस Yes. अच्छा Yes. okay. Madhuri madam.